हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो एज आई सेड के ड्राइव फीचर, क्योंकि गाड़ी में इतने ज़्यादा फीचर्स हैं तो वी हैड टू डिवाइड द वीडियो इन 2 पार्ट्स। तो अभी हम गाड़ी को ड्राइव के लिए लेके निकल रहे हैं एंड विल गिव यू ऑल द फीचर्स विच आर हियर इन द कार। हमारे साथ में यहाँ पे जय शर्मा जी फ्रॉम वॉल्वो। ही इज द वन हु यू हैव टू गेट इन टच विद अगर आपको ये गाड़ी लेनी है या इसका टेस्ट ड्राइव लेना है या कुछ स्पेशल डिस्काउंट लेना है तो वही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो एज वी नो टू डेट, आज के दिन पे अभी तक कंपनी ने रेट्स आउट नहीं किए हैं, बट देन जयेश, इफ यू बी इन टच विद हिम, ही विल लेट यू नो वंस द रेट्स आर आउट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग तो वो आपको बता देंगे। तो अभी ड्राइव में हम इनके साथ में जा रहे हैं तो ये हमको गाड़ी के फीचर्स के बारे में भी बताते रहेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कार हैज 7 एयरबैग्स। उसके अलावा और क्या स्पेशल सेफ्टी फीचर्स हैं? See, first of all, what makes this car different or unique is like it's a new EV what we have introduced in the market, and it has got 408 horsepower engine capacity. Nice. Its torque is 660. It's like a rocket. Whatever feedbacks we are receiving from our customers, and this is uniquely designed, especially for the our Indian customers. There are so many features what we are going to see now. For example, though this is an entry segment car or entry segment SUV, but still it has got 360 view camera they have added. This Volvo XC40 Recharge is based on semi-autonomous drive technology which is linked with radar. So radar camera which is here, you can see the radar camera which is plotted on the top. I'll just show it to you. This is a radar camera जो आपको बाहर से दिखाया है मैंने। You can see from the outside, you can see that camera there. So based on the semi-autonomous drive technology, it has got auto braking feature. Let's say if you're driving in city or on the highway and suddenly any pedestrian, any cyclist, any passerby, any animal is coming in your way, and if you're not alert, active at that particular time or moment to apply the brake, your car applies the brake by its own. Nice. Yes. Ahead of that, we have got lane assist feature. Whichever lane you are driving in, most of the time ऐसे होता है कि when you are driving for the long, sometimes you or maybe your chauffeur is feeling sleepy or drowsy, Right. and might there are chances he'll take your car towards divider side or either on the maybe on the out of the lane. True. And in that case, it helps you. It gives you the resistance on the steering. It resists you there, and it gives you the vibration on the steering, so that easily you cannot change the lane or you cannot go unless and until if you will not give indicator. It will resist you there, and it will help you to come back to the lane. It will be a wake up call to you, or you can say for your chauffeur also. Superb guys, मतलब इतने शॉर्ट में इतने सारे इन्होंने फीचर्स बता दिए। सेफ्टी फीचर्स ओनली है, इतना जो इन्होंने बोला है, दीज आर मेजरली ऑल द सेफ्टी फीचर्स गाइस। इवन जैसे कि आपने क्रूज कंट्रोल के बारे में सुना होगा, बट वी हैव गॉट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेट्स से यू आर ड्राइविंग इन योर अराउंड सिटी ओनली, you have turned on your adaptive cruise control feature with a speed of let's say 60, and you are just going from one place to another. In that case, you just need to sit on the driver's seat, और आपको स्टेयरिंग पकड़ के बैठना है। ब्रेक एक्सीलरेटर जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। साथ ही साथ इसके आगे अगर जाके आप देखोगे तो इट हैज़ गॉट ऑटो पायलट फीचर। लेट्स से पुणे से मुंबई अगर आप जा रहे हैं, टेंटेटिवली जैसे 150 to 180 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और अगर आप ऑटो पायलट मोड के साथ में अगर जा रहे हैं, लेट्स से इफ़ यू आर टर्निंग ऑन द ऑटो पायलट मोड विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 80 to 120, ठीक है। सो वट एवर स्पीड यू हैव सेट, आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू सिट ऑन द ड्राइवर सीट एंड ऑब्जर्व स्टेयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर जो है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इवन इफ देयर आर नैरो रोड्स, then your car manages to turn in that way. Definitely while sitting on the driver seat, you have to observe things accordingly, because आप ऑटो पायलट मोड में आपको नींद नहीं आ रही है या यू आर अवेक, इसके लिए स्टेयरिंग के ऊपर एक कमांड आता रहेगा या आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर एक कमांड आता रहेगा, होल्ड स्टेयरिंग। तो इट मीन्स कि यू आर एक्टिव, यू आर नॉट स्लीपिंग और यू आर नॉट इन ड्रॉजी मोड, ठीक है। सो इट विल बी एडिशनल पीस ऑफ माइंड which is added in our car based on semi-autonomous drive technology. तो अभी तक हम कंप्लेन करते थे कि क्रूज कंट्रोल कार में होना चाहिए, क्योंकि मैनी ईवीज इन व्हेन दे स्टार्टेड दे वर कमिंग विदाउट क्रूज कंट्रोल एक्चुअली। तो हम लोग कंप्लेन करते क्रूज कंट्रोल रहना चाहिए। पावर लॉन्ग ड्राइव में पाँव दर्द कर जाता है कि ओपन हाईवेज है तो क्रूज कंट्रोल ऑन करके आदमी आराम से, तो इसमें तो आपको स्टेयरिंग भी पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इट्स बेसिकली यू आर जस्ट
sitting and relaxing in the car on long routes, on roads like express highways. I'm sure we can't use that feature on regular, क्योंकि इतना ट्रैफिक आजकल रैंडम ट्रैफिक अपने यहाँ पे होता है कि वो ये सारे फीचर्स आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे. बट समथिंग लाइक एन एक्सप्रेस हाईवे, यू दैट 100 kilometers without any tension, you just have to sit and just monitor the car कि कार कुछ ज़्यादा आगे पीछे कुछ हो रहा है तो आप उसको टेक ओवर कर सको. तो विल स्टार्ट द ड्राइव. आई एम नॉट श्योर कि हम टेस्ट ड्राइव रेंज टेस्ट कितना कर सकेंगे इसका. विल ट्राई एंड फिगर दैट आउट, बट वी जस्ट अ मिनी रेंज टेस्ट विल डू. वी जीरो द होल ट्रिप हियर. एंड अगर आप देखो ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया और यहाँ पे 80% चार्ज दिख रही है गाड़ी अपनी. तो विल सी अभी ये पूरा कितना किलोमीटर हम कवर करते हैं, कितना परसेंट जाएगा. एक छोटा सा रेंज टेस्ट इसका मार ही लेंगे अभी. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट आई नोटिस जस्ट नाउ इज कि रिवर्स में भी ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम दिया है. तो अगर आप रिवर्स ले रहे हो गाइस एंड पीछे से कोई पेडिस्ट्रियन आ जाता है या कोई साइकिल या ऐसा कुछ आ रहा है जो आपके व्यू में नहीं है और अचानक से आ जाता है तो गाड़ी अपने आप ब्रेक मार देता है. सो दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर दैट वी सॉ इन द कार राइट नाउ. ड्राइविंग ऑन द हाईवे राइट नाउ टुवर्ड्स मुंबई, the feel, the suspensions, and like even with normal speed, like the control of the car is amazing. The braking and regen level is there. There's a extra powered one pedal drive regen level इसमें एक है. तो यहाँ कार में ड्राइव मोड्स नहीं है, लाइक स्पोर्ट मोड वगैरह कुछ नहीं है. बट एंड इवन द रीजन लेवल इज सेट बाय द कंपनी. तो इफ यू ब्रेक देन ओनली द कार इज डूइंग द रीजन बाय डिफॉल्ट. अदरवाइज इट्स जस्ट कोस्टिंग, जो कोस्ट मोड जैसा रहता है अपना. तो इट्स जस्ट कोस्टिंग द कार व्हाटएवर स्पीड पे वो रोल करते जा रहा है. तो राइट नाउ आई एम ऑफ द पेडल एंड द कार इज स्टिल रोलिंग ऑन इट्स ओन. इसमें बाकी जो कार्स हैं जिसमें जैसे हमारी नेक्सॉन वगैरह में है कि गाड़ी रीजन करना शुरू कर देती है, गाड़ी स्लो हो जाती है, तो वो बाय डिफॉल्ट मोड नहीं है. व्हेन यू प्रेस द ब्रेक एट दैट टाइम इट गिव्स यू द रीजन. एंड दे हैव, इफ यू गो इन द सेटिंग एंड इन ड्राइविंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे नीचे वन पेडल ड्राइव मोड एक है. तो उसको आप ऑन करोगे तब गाड़ी ब्रेकिंग शुरू करेगी. बट देन इट्स अ वेरी हार्श ब्रेकिंग कंपेयर टू व्हाट वी हैव. तो if you once you are comfortable then only you can easily use it. So this mode is a kind of aggressive compared to the regen levels that we see in other cars. So once you have a whole hang of it और आपको पता है कि ये किस वे में काम करता है, उसी टाइम पे आप इसको यूज करेंगे तो बेटर है. बट इट इज नाइस, लाइक आई गेस घाट वगैरह सेक्शन में द रीजन लेवल शुड बी very high because I just tried it. So let me just see, there's no traffic behind me, so I'll turn this on. I've turned this on. मेरे पीछे ज़्यादा कुछ ट्रैफिक नहीं है. अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो देखिए स्पीड कितना जल्दी उसने गिरा दिया है. So as I said, it's a bit aggressive, but then I guess घाट वगैरह में it should be very helpful to gain more battery. So there is blind spot detection also in the car on both the mirrors, so that is also very helpful. The biggest feature is the semi-autonomous driving and cruise control. तो अभी बहुत सारी गाड़ियों में है, सब में ही हो गया है अभी ऑलमोस्ट मार्केट में. इलेक्ट्रिक कार्स की मैं बात कर रहा हूँ. उसके अलावा IC में बहुत गाड़ियों में था, लेकिन इस इंडिया में Volvo is the first one to introduce semi-autonomous driving mode. उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा मैं बैक चले जाता हूँ. सेटिंग्स में आपको ड्राइविंग में जाना है एंड स्टीयरिंग असिस्ट और लेन कीप असिस्ट को आपको लेन कीपिंग असिस्ट एड को आपको ऑन करना है. इसको ऑन करके तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ये सेंटर क्रूज ऑन का बटन दबाना है एंड इट हैज टर्न्ड ऑन द लेन कीप असिस्ट. It has turned on the steering assist and lane keeping aid. Now guys you can see ना मेरा पाँव पेडल पे है, ना मेरा हाथ स्टीयरिंग पे है और गाड़ी अपने आप चल रही है नेचुरली. और अभी आपको ये वार्निंग दिख रहा है, ये बेसिकली ताकि कोई सो ना जाए उसके लिए है. तो आपको सिर्फ स्टीयरिंग को यहाँ पे होल्ड करके थोड़ा सा शेक करना है ताकि गाड़ी को पता रहे कि आप सो नहीं गए हो ऑन करके, और गाड़ी अपने आप चलते जा रही है. वन मेन थिंग गाइज, अगर लेन मार्किंग प्रॉपर है तो ही ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा. तो डोंट टेक दैट रिस्क ऑन रेगुलर रोड्स, हाईवेज वगैरह पे ही करिए. ये वार्निंग आपको कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वार्निंग आपको कंटिन्यूसली आता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, सो दैट यू हैव दिस थिंग, सो दैट यू पे योर अटेंशन ऑन द कार. बट
इतनी देर से अगर आप देखोगे pedal free and no hands on the steering wheel and car will maintain the lane. थोड़ा सा भी कुछ कर्व वगैरह आएगा गाड़ी अपने आप मुड़ता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, unless and until it's an extreme turn that you want to take, it will do on its own. और कोई गाड़ी बीच में आएगी, गाड़ी अपने आप ब्रेक होगी, हमारे आगे वाली गाड़ी स्लो डाउन होगी, गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी. सो वेरी इंटेलिजेंट ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग विच द कार हैज़. मतलब हम व्लॉगर्स के लिए अच्छा है. जय जी बोल रहे थे कि आप ये गाड़ी ले ही लो, आपको व्लॉग शूट करते करते बहुत आसान पड़ेगा, आप आजू बाजू का बी रोल्स आप लेते लेते गाड़ी चला सकते हो. सिंपली अमेजिंग, फीलिंग इज अमेजिंग गाइज. द एज यू कैन सी अभी ये साइड में एक ट्रक को भी ओवरटेक कर लिया है हमने. एंड व्हेन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया है विदाउट यूजिंग द स्टेयरिंग व्हील और द पेडल एट ऑल, एक्सेप्ट फॉर just letting the steering wheel know कि we are here. One more thing, अगर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, there's an icon that is showing the distance that you have to keep between the car in front of you. तो वो भी आप यहाँ से adjust कर सकते हो.